ناظم آباد ٹاؤن کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا ابتدائی خاکہ سامنے آ گیا ہے، جس کے مطابق مجموعی بجٹ کا حجم 2 ارب 45 کروڑ روپے ہوگا۔ میونسپل کمشنر کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کے لیے 58 کروڑ جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 1 ارب 86 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں رضوان احمد سے۔ جی رضوان۔ مالی سال 2026-27 کے لیے ٹاؤن حکومتوں نے بھی بجٹ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں اگر ناظم آباد ٹاؤن کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی متعدد اجلاس جو ہے وہ منعقد کیے جا چکے ہیں، اور آئندہ چند روز میں یہ بجٹ جو ہے باقاعدہ طور پر پیش کر دیا جائے گا۔ میونسپل کمشنر عزیز الرحمان تنیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بتائیے گا بجٹ کی تیاریوں کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کتنے کا بجٹ ہوگا ترقیاتی، اس میں جو ہے اخراجات کتنے اٹھائے جائیں گے؟ بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، 18 تاریخ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اور بجٹ بنی ہے 2 ارب 45 کروڑ روپے کی، اور اس میں ترقیاتی بجٹ ہے 58 کروڑ روپے کی رکھی ہے، اور غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ 1 ارب 86 کروڑ کی ہے۔ تو ہمارے اون سورسز بھی ہیں، ان سے بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے وہ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ او زیڈ ٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو تنخواہوں میں سالانہ اضافہ ہوتا ہے وہ ٹاؤن حکومتیں دینے میں بڑی مشکلات ان کو پیش آتی ہیں۔ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو کیا اس او زیڈ ٹی میں رہتے ہوئے آپ یہ اضافہ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے اور لکھیں گے بھی، ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بڑھا کے دیں، تو 50% بڑھا کے دیں، تاکہ ہم وہ اپنا ڈیولپمنٹ بھی کرا سکیں گے، اس میں سے وہ تنخواہ جو بڑھے گی وہ بھی دے سکیں گے۔ کیا پیش رفت اب تک سامنے آئی ہے آپ کی جانب سے جو خط و کتابت کی گئی ہے اس حوالے سے؟ امید ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، امید ہے فائنانس والے وہ اپنا بجٹ بڑھا دیں گے۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انفراسٹرکچر مواصلاتی نظام کی بحالی کے لیے جو ہے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، عوام کا مطالبہ بھی یہی سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ او زیڈ ٹی میں چونکہ ماہانہ او زیڈ ٹی میں اضافہ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے خدشہ یہ ہے کہ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو وہ دینے کے قابل جو ہے ٹاؤن حکومتیں نہیں رہیں گی، لہٰذا حکومت سندھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آکٹرائز ضلع ٹیکس جو کہ ماہانہ شیئر ہوتا ہے اس میں 50% اضافہ کیا جائے۔ جی ناظرین، پیداواری لاگت، بھاری ٹیکسز اور مالی مشکلات کی وجہ سے کراچی میں صنعتی کنیکشن کم ہو گئے ہیں۔ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری صدر فیصل معیز کا کہنا ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو صنعتوں پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنا ہوگا، اور مطالبہ کیا کہ بجٹ میں وفاق کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے خصوصی فنڈز مختص کرے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے، جو ٹیکس ریجیم جس طرح کا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، ان معاملات میں انڈسٹری چلانا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں، سپر ٹیکس جیسی ایک چیز جو ہے جس پہ ہم نے بارہا بولا ہے کہ سپر ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، ہم نے جو ایف ٹی آر سے انہوں نے جو 2024 کا جو فائنینشیل ایکٹ تھا اس کے تحت جو ہے این ٹی آر میں لے آئے تھے ایکسپورٹر کو، ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایف ٹی آر میں لایا جائے، جو 2% کا ٹیکس کیا ہے اس کو 1% پہ لایا جائے۔ اس کے علاوہ اور بے پناہ مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ انڈسٹری فیس کر رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی کی، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی سچویشن کراچی کی، کراچی پورٹ پہ جو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ حکومت وقت کو اگر اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو انڈسٹری کے اوپر ٹیکسیشن کو جو ہے وہ کم سے کم کریں۔ اور الواسی ٹاؤن میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ لانڈری مالکان کا کہنا ہے کہ بجلی بندش سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، دن بھر بجلی نہ ہونے سے کام متاثر ہوتا ہے۔ لانڈری دکانداروں نے مطالبہ کیا کہ لوڈ شیڈنگ کا مستقل حل نکالا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دعا شکیل پراچا سے۔ جی دعا۔ جی بالکل، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل جو ہیں وہ اب کراچی کے ہر علاقے میں ہی پائے جاتے ہیں، اور میں اس وقت جو ہے الواسی ٹاؤن کی ایک لانڈری شاپ پہ موجود ہوں، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لانڈری کے سارے کام ہی جو ہیں وہ بجلی سے ہوتے ہیں، اور بجلی نہ ہو تو یہاں کے جو ہیں وہ دکانداروں کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ انہی سے جان لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا آپ کہ کیا یہاں پہ بجلی کے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ آپ کی ویسے بھی یہاں لانڈری شاپ ہے اور اس کے بغیر بجلی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ جی، جن کی اپنی ٹائمنگ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے نا وہ بھی پوری ہو جاتی ہے ان کی، جو ہماری ٹائمنگ کے لائٹ جو دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو تقریباً کٹ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ مشکل سے ہمیں لائٹ ملتی ہے جو ان کی ٹائمنگ کی لائٹ ہے۔ اب جیسے ابھی 3:30 آئی ہے تو یہ 5 بجے جاتی ہے، تو کبھی کبھی یہ 4 بجے آتی ہے،
कभी 4:15 आती है, इसमें भी डंडी मार देते हैं ये लोग, ये भी टाइमिंग ही पूरी नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी आप जिस तरह लाइट नहीं है, काम जी। इतने सारे पड़े हुए हैं, तो कितनी मुश्किलात पेश आ रही है? बहुत मुश्किल है जी, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ता है। रात को हमें ये करना पड़ता है, फिर हमें रात को 12 यानी कि 12:30 लाइट आती है, तो हमें 2 बजे तक 2:30 बजे तक काम करना पड़ता है। रात अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है अपनी। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक दुकानदार की बात नहीं बल्कि बहुत से इस इलाके में, अलवासे टाउन में और उसके अलावा और भी इलाकों में ऐसे लोग हैं, दुकानदार हैं जो परेशान हैं बिजली ना आने की वजह से। इनका यही कहना था कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक तो बिजली जाती ही जाती है, साथ ही साथ इजाफी टाइमिंग्स में भी लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और साथ ही साथ फिर उसकी वजह से इनको पूरी रात जाकर जो है वो लॉन्ड्री में जो है वो काम करना पड़ता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो नाराज़ ना हो। तो उनका यही कहना था कि इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी के दौरान मुनक़िद होने वाली मजालिस और निकाले जाने वाले जुलूसों के लिए ट्रैफिक की रवानी, शहरी सहूलियात और फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने के सिलसिले में DIG ट्रैफिक कराची के दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास की सदारत DIG ट्रैफिक कराची ने की। ज़िला SSPs ट्रैफिक, DSP सिक्योरिटी ट्रैफिक, DSP लीगल, उलमाए कराम और मजालिस व जुलूसों के मुंतज़मीन के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी के दौरान मुनक़िद होने वाली मजालिस और निकाले जाने वाले जुलूसों के लिए ट्रैफिक की रवानी, शहरी सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के सिलसिले में DIG ट्रैफिक कराची के दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास की सदारत DIG ट्रैफिक कराची ने की है। ज़िला SSPs ट्रैफिक, DSP सिक्योरिटी ट्रैफिक, DSP लीगल, उलमाए कराम और मजालिस व जुलूसों के मुंतज़मीन के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी के सिलसिले में कराची ट्रैफिक पुलिस का अहम इजलास, फुल प्रूफ इंतजामात पर गौर। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी दुरे शवार। जी दुरे, अपडेट कीजिए इजलास से मुतालिक। जी बिल्कुल, इजलास के दौरान जो मुहर्रम उल हराम के अयाम में ट्रैफिक की मौसर निज़ाम, अज़ादरान की सहूलियात के लिए और शहरियों को दरपेश मुमकिन मुश्किलात के तदाद के हवाले से तफसीली गौर किया गया। इस मौके पर DIG ट्रैफिक कराची ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान जो है मजालिस और जुलूसों के इनकाद के पेश नज़र एक जामिया मौसर ट्रैफिक प्लान तश्कील किया जा रहा है, ताकि अज़ादरान को सहूलत फराहम करने के साथ साथ शहर में ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार रखा जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता बरस के तजुर्बात और मुशाहिदात को मद्देनजर रखते हुए इस साल मजीद बेहतर, मजबूत और मुनज़्ज़म इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस तमाम मुतल्लिक़ इदारों और मुतज़मीन के साथ करीबी राब्ते में है, ताकि जुलूसों मजालिस के दौरान शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े और मुतबादिल रास्तों समेत तमाम ज़रूरी मालूमात बरोक़ फराहम की जा सके। DIG ट्रैफिक कराची ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि तमाम जुलूसों के रूट, मजालिस के मकामात और उसके अतराफ के इलाकों को फौरी सर्वे और तफसीली मुआयना मुकम्मल किया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सड़कों पर मौजूद रुकावटों, गैर कानूनी पार्किंग और दीगर ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए मुतल्लिक़ इदारों के साथ मुकम्मल राब्ता और ताउन यकीनी बनाया जाए, ताकि जुलूसों के रूट और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की बिला ताक़िद रवानी बरकरार जा सके। ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में चलने वाली फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग में मसरूफ। मौका पर जुर्माने के साथ बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जब्त भी की जा रही हैं। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में देखिए। जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ शिकंजा सख्त, शहरियों को खबरदार कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जाली, फैंसी और बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है, जहां ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। सदर कोरंगी रोड, गुलिस्तान जोहर, नाजमाबाद और दीगर अहम शाहराहों पर कायम नाकों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को तहवील में लिया जा रहा है, जबकि मौके पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अफसरान बाला के हुक्म से यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। तो काफ़ी गाड़ियाँ हमने डिटेन की हैं और जो नंबर प्लेटें लोगों ने असल में बदनीति पर मबनी है, कैमरे से बचने के लिए लोगों ने नंबर प्लेटें स्नेचिंग की हुई हैं और नंबर प्लेटें उतारी हुई हैं। अभी भी आपके सामने काफ़ी बाइकें खड़ी हुई हैं जो बंद की हैं
اور جو نمبر پلیٹیں بنوا کر لے آتے ہیں پراپر طریقے سے ان کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں، اور جو گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ کے ہیں وہ متعلقہ تھانے کو 550 کر دیں۔ पुलिस हुकाम का कहना है कि मुहिम का मकसद जराइम की रोकथाम और गाड़ियों की दुरुस्त शनाख्त को यकीनी बनाना है। शहरियों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स नस्ब करें और जरूरी दस्तावेजात हमरा रखें ताकि चालान और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। कैमरामैन काशिफ अली के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम डीलर्स ने कमीशन में इजाफे के मुतालिबे पर हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत दे दी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि वज़ीर पेट्रोलियम ने 2 रोज़ में जवाब न दिया तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स के मुस्तकबिल पर बड़ा फैसला मुतवक्की है। पेट्रोलियम डीलर्स का मौक़िफ़ फौरी रिलीफ न मिला तो कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहेगा। ये मीटिंग हो कि हालात बिजनेस के बहुत ख़राब हो गए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो रही है, लोगों के कैपिटल ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए कल ये फैसला किया गया कि मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करें, ख़त भेजें, और अगर वो 2 दिन में जवाब नहीं देते तो फिर हम उनको ये पहले उस ख़त में ये लिख रहे हैं कि या हमें बुला लें या आप तशरीफ़ ले आएँ कराची में, हमसे मीटिंग करें, हमारी वजारतों में जो प्रैक्टिकली इन राइटिंग में हमारे लॉसेस हैं उनको देख लें, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको देख लें और फिर फैसला करें। और जो पार्टिसिपेंट थे मीटिंग के, उन्होंने ये चेयरमैन को प्रेशर दिया कि आप इसको फिक्स करें, तो उन्होंने 2 दिन फिक्स कर लिए कि 2 दिन में आज लेटर जाएगा, 2 दिन हम इंतज़ार यानी मंडे तक इंतज़ार करेंगे क्योंकि सैटरडे संडे आ जाएगा। मंडे के बाद फिर कमेटी की मीटिंग होगी, वो कमेटी के जो हाकिम है 30 वो जो फैसला करेंगे वो चेयरमैन उसकी अप्रूवल देगा और फिर उस पर अमल होगा। वो अमल ये होगा कि फिर कारोबार करना मुश्किल हो गया। आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा कंवारी माँ पेश किया जाएगा। ड्रामे की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज डायरेक्टर नासिर खान की 15 साल बाद वापसी। कहते हैं ड्रामे की 15 साल बाद वापसी है। उन्होंने कहा कि ड्रामे में मजाक के साथ इस्लाही पहलू भी उजागर किया जाएगा। मजीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइए। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर एक ड्रामा पेश किया जाएगा जिसका नाम है कंवारी माँ, जो कि 14 और 15 जून को कराची आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा, जिसकी आज इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई है। ड्रामे के राइटर, डायरेक्टर और पेशकार जो हैं नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, क्या कहेंगे, ये ड्रामा किस टाइप का होगा? क्योंकि नाम तो थोड़ा संजीदा भी लग रहा है। अमूमी तौर पर जो स्टेज ड्रामे होते हैं वो तंज़ो मिज़ाज से भरपूर होते हैं, तो इस ड्रामे के हवाले से क्या कहते हैं? इस ड्रामे में असल में सब्जेक्ट जो है मेरा वो एक माँ के गिर्द घूमता है, जिसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, सब्जेक्ट भी मिलेगा, माँ के हवाले से मैसेजेस भी मिलेंगे। तो एक माशरती हमारी एक कहानी है जो माशरत की हमारी माशरे के गिर्द घूमती है, तो उसकी थोड़ी सी मैंने अक्कासी करने की कोशिश की है। और ये काम मैं पहले भी काफ़ी अरसे से नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैंने दोबारा स्टार्ट लिया इंशाल्लाह। और साल बाद आपकी वापसी? 15, 16, 17 के बाद, साल के बाद मैं अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कास्ट में कौन कौन लोग शामिल? हाँ, हमारी कास्ट में सबसे पहले तो शकील शाह है, जाना पहचाना नाम है सबके लिए, पाकिस्तान का बड़ा नाम है। वही शानज़े वर्दा हैं, इसको भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कराची स्टेज की मलका हैं। इदरीस कमाल हैं, इरमा को आप इस तरीके से जानते हैं, और बहुत सारे जो स्टेज देखने वाले हैं वो उसको भी सब जानते हैं। रऊफ़ लाला का बेटा अब्दुल्ला लाला उसके अंदर मौजूद है। एक हमारी नई आमद है, अभी 2-3 प्ले में किया है, तायरा खान, वो हमारे साथ हैं। और सिकंदर सनम के दोनों बेटों को मैंने इस दफ़ा चांस दिया अपने साथ, ज़ोहेब सनम और शहबाज सनम। और दूसरी भी कास्ट हैं, इसमें फ़ायज़ा मलिक हैं, वो भी बहुत पुराना नाम है इसके अंदर। बिल्कुल जी। तमाम नए और सीनियर आर्टिस्ट का हसीन इम्तिजाज इस ड्रामे में पेश किया जाएगा। और कराची स्टेज के राइटर और डायरेक्टर तकरीबन 15 साल के बाद दोबारा से वापसी कर रहे हैं ड्रामा कंवारी माँ से, जो 14 और 15 जून को कराची आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। जी। नॉर्थ कराची सेक्टर 71 में किल्लत आब ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई हफ्ते पानी नहीं आता, महंगे टैंकरों और कैन के पानी पर इन्हसार करने पर मजबूर हैं। पानी के बढ़ते खर्च ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राबिल सदीद की रिपोर्ट देखिए। पानी की बूंद बूंद को तरसे शहरी, मगर निजाम अब भी खामोश। नलके खुश्क
ٹینکر مہنگے اور امیدیں کمزور۔ نارتھ کراچی میں سیکٹر 7D1 میں پانی کی قلت نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ علاقہ مکینوں کا مطابق ایک ماہ پانی آتا ہے تو اگلے ماہ پانی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ پانی تو ایک مہینے بعد آتا ہے تقریباً، سمجھے آپ، اور پانی نہیں آتا تو بہت پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں، پھر پانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ اب مہنگائی ایسی ہے کہ میں تو ایک جو نا نوکری پیشہ بنتا ہوں، سمجھے آپ، بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ علاقہ مکین خاتون نے بتایا کہ عید الاضحیٰ سے قبل آنے والا پانی اب تک استعمال کیا جا رہا ہے، ذخیرہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے، نہیں معلوم دوبارہ پانی کب فراہم کیا جائے گا۔ مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور ابھی بقرعید میں بھی ایک ہی بار پانی آیا تھا، تو پھر جو ریسٹور پانی ہم نے وہی استعمال کیا بقرعید میں بھی، اور ابھی تک کوئی پانی نہیں آیا، اور رمضانوں میں بھی بہت تنگ آ رہا تھا، رمضانوں میں بالکل آخری اشرے میں پانی آیا تھا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے فوری طور پر مسئلے کا نوٹس لیں اور علاقے میں پانی کی مستقل اور منصفانہ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ رابعہ الصدیق، سٹی 21۔